Okay, Assalamu everybody. We are now live on Facebook, and so welcome those who are attending. Also, a welcome, and those who are here as speakers. This is our 7th webinar by FPCCI Central Standing Committee of Tourism Development. Thank you so much for watching us consistently over the last weeks and giving us your feedback. After having successfully done sessions with hoteliers, tour operators, travel agents, vloggers, tour guides, and the corporate sector, I am with you again, this time with transporters that have been responsible for taking large numbers of tourists to beautiful locales in Pakistan over many years. As you know, our focus is to promote local tourism, especially keeping in mind the after effects of COVID-19. International tourism is not going to be without its hassle for at least some time. So this time we thought that it would be a good idea to hear what measures our transporters are taking to ensure safe travel for everyone. Let me introduce you to our guests today. First of all, we have Mr. Arshad Salam Khattak. He is the Divisional Superintendent, Karachi Railways. Then we've got Mr. Shaheen Akhtar with us, who is Chief Operating Officer of Europcar. So welcome. We are expecting a third speaker as well, who is from Daewoo, and I hope that he will be able to join us. So far, I think he's missing in action, but we will begin, and inshallah, he'll be with us in no time. So I'm going to begin with my question. First of all, to Shaheen. I wanted to know whether it's going to be economically viable for your company to run affordable highs and coasters strictly following the protocol for protection against corona. Because, you know, in the last few webinars that we've had, we've all been discussing on whether local tourism, which is now going to really pick up, whether it's going to become more expensive. Because with following all the protocols for, COVID, keeping the distance, that means few people in the same coaster that would accommodate a lot more people. So per head costs become more. How are you going to be coping with all these expenses? Thank you very much for inviting us. Thank you, Ji. Thank you very much for inviting us on this very informative session. Just let me tell you something about our company. That the Europcar is a mobility solution provider. As you have already told the audience, that हम ground mobility के ऊपर we are specialized in the ground mobility. Ground mobility में भी हम coasters, highest and high-end car, Prado, Land Cruiser, ये हम provide करते हैं अपने clients को. अच्छा, हम जो आपने कहा कि ये जिस कोविड-19 की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई हैं, तो इकोनॉमिकल डेफिनेटली वी डू, स्पेशली इन इस्लामाबाद, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्दर्न एरिया इज़ वेरी गुड प्लेस टू विजिट फॉर आवर टूरिज्म सर्विसेज, और अब काफ़ी सारे फॉरेनर्स भी वहाँ आते हैं, लोकल टूरिस्ट जो भी हैं वो भी उधर जाते हैं, तो हम डेफिनेटली फैमिलीज़ को वहाँ के लिए प्रोवाइड करते हैं विद फुल सेफ्टी, सैनिटाइजर, मास्क, ड्राइवर, एवरीथिंग, एंड वेरी इकोनॉमिकल, बिकॉज आपको पता है आजकल प्राइसेस भी पेट्रोल की और काफ़ी प्राइस नीचे आई हैं, तो जिसकी वजह से हमें जो बेनिफिट हुआ है वो वी आर पासिंग ऑन टू अदर. इस सिनेरियो में भी वी आर हैविंग गुड क्लाइंटेल जो चाहते हैं विजिट करना, क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ बुखारी ट्रैवल एंड टूर्स, तो हम अंडर वन रूफ ऑल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो बड़ा इकोनॉमिकल पड़ता है. जब आप टिकट भी एक जगह से ले लेते हैं और टूरिज्म का जो पूरा पैकेज भी आप एक जगह से ले लेते हैं, तो वी हैव अ वेरी थिन मार्जिन. तो लेकिन क्योंकि हम पूरा कंबाइंड सोल्यूशन देते हैं, तो ये बड़ा इकोनॉमिकल पड़ता है तमाम लोगों को. मगर मेरा सवाल एक्चुअली ये था कि पहले जैसे फॉर इंस्टेंस कोस्टर बुक करते थे आपसे और आप लेते थे 15,000 रुपीज, ठीक है? अब उस 15,000 रुपीज के कोस्टर के अंदर हम 15 लोगों को बिठा रहे थे, ठीक है? अब हम उसी 15,000 के कोस्टर में 7 लोगों को बिठा सकेंगे, क्योंकि अब हमें
डिस्टेंसिंग वगैरह रखनी होगी, तो ऑटोमेटिकली मेरा तो एक्सपेंस अब बढ़ गया। अब उसको आप किसी तरह फैसिलिटेट आप करने वाले हैं लोगों को, ताकि इस तरह के कॉस्ट को हम कुछ बफर हो जाए। मैं दो चीजें। एक तो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस हम बढ़ाना चाह रहे हैं ना, कॉस्ट हम कम करेंगे। जैसे मैं अभी आपको एक मिसाल दूं कि कोस्टर्स तो एक अपनी जगह, एक मेरा क्लाइंट है जो इस्लामाबाद से मरी जाके रहना चाहता है, और एक हफ्ते के बाद वो कहता है मुझे आप वहाँ ड्रॉप कर दें, मैं वहाँ घूम फिर के फिर मैं आप एक हफ्ते के बाद आप मुझे पिक कर सकते हैं। पहले ये था कि जी वो पूरे हफ्ते के लिए गाड़ी We've lost you, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरे को कॉल आ रही थी। हेलो जी, तो आवाज आ रही है? जी आपकी शक्ल नहीं आ रही है मगर आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, आपका वीडियो ऑफ हो गया। ये आवाज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चल ये कह रहे जी, तो मैं ये कह रहा था कि वो जो कोस्टर और हाईएस्ट देखें आपने, जैसे एक तो कोस्टर में हमारे पास हमारे पास एक कोस्टर जो है वो उसमें 24 सीटर है, ठीक है जी, 24 सीटर, तो उसमें हम 24 सीटर की कोस्टर। हाईएस्ट हमारे पास है 12 सीटर, ठीक है जी। 12 सीटर के अंदर फिर हम कहते हैं जी 6। अच्छा, कॉस्ट हमने भी अपनी कम की है और क्लाइंट को भी पहले जो 3000 था, हो सकता है अब उसको 1500 ना देना पड़े, 2000, लेकिन अब वो 2000 देके वो हमने कंपनसेट किया है कि वो अगर ये आता है तो वो 50% नहीं होगा। जैसे कि अगर 12 की जगह हमने उसको 6 कर दिया तो जी 50% डिस्काउंट कम हो गया, नहीं, वो 60 नहीं होगा, वो 50 नहीं होगा, वो 60 होगा, 70 होगा, लेकिन इसका बेनिफिट जाएगा। अच्छा, फिर हम अदर जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वो अदर को जो है वो भी हमने किया। वो जो हमने अपनी कॉस्ट 10-12% वो हमने ऐड की, तो वो उनको 50 की जगह 100% 50% के साथ 10% मोर देगा, लेकिन उसमें कम। असल में ये ज्यादातर होता है फैमिली का, ये वो फैमिली करते हैं ना कि एक गाड़ी की उन्होंने 10-15 हज़ार में वो कर ली। हमारे साथ तो ज्यादातर जो फैमिलीज हैं वो एक ही फैमिलीज की जाती हैं, क्योंकि हम वो इंडिविजुअल टूर्स को नहीं वो कर रहे। आप अगर कह रही है कि शायद अगर आप एक टूरिस्ट है, आपने इंडिविजुअल से आपने 15-15 आपने चार्ज किया 5-5 हज़ार, तो फिर अब वो इंडिविजुअल इस वक्त हम ज्यादा, क्योंकि इस कोविड-19 में हम ट्राई यही करते हैं कि फैमिली जाए, क्योंकि डिफरेंट लोगों को लेके बनाना इज अ रिस्की, तो हम वो नहीं कर रहे इस वक्त। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो फैमिली जो वो है जो मूव कर रहे हैं वो जाए। इंडिविजुअल को अलग अलग, जैसे मैं एक और आ गया, एक किसी और से ले लिया, एक इस तरह अभी वी आर नॉट डूइंग दिस, वी विल डू बट नॉट नाउ। सही नहीं, इनफैक्ट मैं भी इंडिविजुअली की बात कर रही थी, मतलब फैमिलीज की बात कर रही थी, मगर फैमिलीज में भी बहुत दफा ऐसा होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल गो टुगेदर और वो फ्रेंड्स हैं और वो पर हेड अपना कॉस्ट निकालते हैं, चाहे वो पब्लिक के लिए नहीं हो ट्रांसपोर्ट, वो इंडिविजुअली एक फैमिली ही या एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के लिए हो, लेकिन वो आपस में जो है वो अपना पर हेड कॉस्ट लोग कैलकुलेट करते हैं कि उसका कितना पड़ेगा, तो रहने का कितना पड़ेगा, बट आई एम ग्लैड दैट यू विल बी ऑफरिंग दिस इज समथिंग दैट पीपल हैव बीन वेरी कंसर्न्ड अबाउट, facilities so this is a great relief. This brings me to Ashit Saab. I wanted to ask you whether Karachi Railways is planning to upgrade its services so that it can now entice those people who used to prefer to travel air but now are hesitant to do so for whatever reasons. So is Karachi Railways going to do something about that? Thank you very much for inviting on this very important forum that you arranged. I'm very happy that the people from the private sector here. I think Pakistan Railways is in a position, rather it is already positioned to really bring in private sector participation for whatever they want to do. Now, we have got two components. We are doing the commercial side of freight transportation, and we are doing passenger traffic. Now, as far as tourism is concerned, as you know, Pakistan Railways is spread across the length and breadth of the country. We are around 8,000 kilometers of track. It is strategically positioned in the most important urban areas and the rural areas. आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है।
Are we there? Right. I think we are missing Shaheen Saab. So I was trying to respond to him. Hello. Yes, I can hear you, but yes, hello. आवाज आ रही है? जी अब बहुत हल्की आ रही है आपकी आवाज। ये लाइन मुझे तस्वीर नहीं आ रही ना। I think जी तस्वीर भी नहीं आ रही और आवाज भी बहुत हल्की आ रही है। But anyway, Shaheen Saab is there, so Arshad Saab, आप please continue. Yeah, I'm here. I'm listening. आवाज आ रही है? As long as we are hearing each other. Right. So what I was saying, Pakistan Railways बड़ा strategically placed है to promote tourism in any form. Now, if you start from Karachi itself, the very first point, you have these historic heritage railway stations within the city. You can start here. I mean, this can be a point where you attract people that you are about to enter a station which is 120 years old, like the Kent station or city station. The very first point. I mean, you don't have to tell them I'm taking you to Gilgit. Tell them that you are entering a historic building. Now, 3 kilometers down this road, my official residence, again a heritage site, which I have converted into a live-in railway heritage museum. Now, most of you may not be knowing it, right? That's something to attract people on the very first step of the journey. Now, since the private sector is facing problems with escalating fuel prices, with accommodating fewer people on their coaches, we have a much better capacity to carry even a larger number of people by following the COVID protocols. Now, we have already reduced our occupancy to 60%. We have COVID compartment within every train, on every major station, and we have got dedicated COVID hospitals stationed at the stations. Now they are mobile. If somebody wants them, there's a problem in Dadu, I can just by attaching an engine, I can send it there and attend to a pandemic situation, God forbid. Now, the private sector, I can help them by reducing their costs, right? Because my cost of transportation in a reasonably good environment, I mean, much better than a coach, a road coach. Okay. You can put in a tourist and have him landed in. Again, you are landing in a very historic building. On the way, you are crossing Lahore station. It has been a theme of many films. Then you are going through the length and breadth of the country. You are seeing the entire country from here. How many people have you seen jump here or have been to Kinjir Lake? You can see it from the train, right? When you cross Chenab, when you cross Jhelum, when you cross all these rivers, and then when you enter Khyber Pakhtunkhwa, it's just fantastic. I mean, you can never show such a scene to a road user, when you are traveling over Attock Bridge, or there's a Attock Road railway station, which is again a heritage site. So throughout the travel, you would be attracting people's attention, either by going over Indus and telling them that at Sakhar Rudi you have the only dolphin, which is a blind dolphin. Now, most of us have never seen it, but when you are traveling by train and it's early morning, and when you're lucky, there's a good chance that the only species of blind dolphin you would be able to see. And at the same time, you will be passing a bridge, the U bridge,
which was built by Pakistan, and at that time it was the third largest span in the world. And adjacent to that, there's a Lansdowne Bridge, which was built in 1886, right? And at that time, it was the longest span anywhere in the world. So see, so much history, so much, things going around, and you don't even notice it. So railways and the private sector, they can come together and they can work if the intention is to promote tourism. Now, what do you get here? You get government promotion, you get government funding, you get government backing. Now you don't go there in a private vehicle on a road with no insurance. We provide insurance also, right? So sorry to interrupt you. That is traveling by rail is insured. You must be hearing stories about our accidents and things, but if you calculate it with the number of road accidents that you have and the number of people dying, we are the lowest anywhere in this region. मैं आपको ये बताऊं कि you are a great salesperson. आपने ये तो great बहुत अच्छी तरह I can't hear you. कर दिया. I can't hear you. Can you hear me? Very slightly. अभी खटक साहब ने बड़ी अच्छी बात की और मैं जरा इसको elaborate कर दूं. So what I'm trying to say is that I'm not trying to only promote railways, but I'm advocating the private sector to be part of us. So far, we can do an intermodal, right? People, they can hire a Prado, come from Awari, come to the station, sit in our train in an air-conditioned environment, travel with their family in a safe way, reach reach Pindi, get hold of a private, operator, travel to Gilgit or whatever. Sir, so this can be an arrangement, अर्षद साहब, मेरा सवाल ये था कि आप लोग अपनी सर्विसेज को किस तरह अपग्रेड कर रहे हैं? बाहर तो जो कुछ हो रहा है वो तो बहुत जबरदस्त हो रहा है, and I would love to travel by train, but if you don't upgrade your services, then ट्रेन में बैठना जो है ना, चाहे बाहर जितनी भी खूबसूरती हो, मगर अगर आपका एक्सपीरियंस अगर जो आप देंगे वो खुशगवार नहीं होगा, nobody is going to travel by train. That was my question. So are you now planning to joining hands with the private sector and improving our services? Yeah, what are you all doing? Yeah. Right. Okay. Now you are working in an environment, right? I'll just name one place. I'll say Lahore. Now Lahore platform area jo hai, which we calculated, it is twice the area held by all the road, these operators. Jitne bhi bade naam hai, I'll not name them, but unka jitne bhi covered area hai, we have got more area than that. So, we are there. Now we have to come together and bring synergy to the whole thing. Now, you can't expect that there would be an island somewhere, a bada peaceful or bada zabardast, efficient. ये पूरे मुल्क के environment के साथ चलेगा. Now, if people come to the railways, we'll be pressurized to provide them even more better accommodation, more services, more food, more, these toilet facilities, waiting areas. But having said that, even now, if you compare it with, at times, मैं यहाँ का नहीं कहता हूँ for Karachi, but for Lahore, the waiting areas is as good as any airport. With air conditioning, with everything, with very nice restrooms. Lahore में recently हमने Royal Palm के वो खोला हुआ है. There's a branch. They're offering Scarlet Cafe. So because there is a demand. So the more the people, the more the tourists come on the railways, they will be demanding us. Okay, we want this, we want this. But agar it is in slots somewhere and everybody is working in silos. So जो expected standards हैं
वो कभी नहीं आएंगे. And you know, we'll be happy, like somebody would be happy operating a bus, somebody would happy operating a taxi service, but वो synergy नहीं आएगी. ठीक. And then again, daily, even now with the COVID, I am sending around 38,000. This morning it was, let me see a figure, 42,000 people from Karachi would be traveling today. Just imagine the volumes. 42,000 people. You just translate it into buses. It's a big figure. You don't have that kind of service in the country, you know, in terms of buses or private sector coming in on taking individuals. So what I'm trying to convey is that we need to come together, right? Governments are slow. There's lethargy. We have good rules. There's a lot of bureaucracy. But, you know, when there's a proposal, when there is something, we always look at it. Last year, I'm not sure whether I can take names or not, but I allowed Kareem, right? I allowed Kareem to work here for 3 days, and they were just giving flyers, you know. They were giving flyers. So I told them, okay, you just put in your small board, and you know, so that people not having this Wi-Fi thing can, you know, even call you. And they said, okay, we have this system. So, you know, 021 and some number, and Kareem would come. So we're open to, but you know, the private sector should present something, and they should not ask it exclusively for themselves. Problem is that we have to be transparent and fair. Because if I just, you know, offer somebody like Kareem, or if I tell, say, Zong, that you come over and you do something, some other guy, you know, your phone will say, oh, why are you, you know, favoring them? So they should come up with their proposals. We put these proposals to a test, and they can, you know, they can come. But the problem is that the private sector is not coming. And since they're not coming, we are too busy with our things, you know, with our own government things. And so we are not interacting. I think it's a very good forum today that we are. I'm very happy to be talking to Shaheen. And Shaheen Saab must have taken some lead from what I am saying. We need to have an intermodal, right? Like there should be collaboration. People traveling on a taxi or a coach, coming to the station, traveling through Shaheen on the rail, right? Shaheen can book them. We charge him some money. And in this portion of the rail, those passengers get their insurance. Now, this is big business again. Just today, I had a guy who wanted a small kiosk for a couple of days so that he can promote his travel insurance. I said, okay, what are you going to offer to me? Are you going to give some money to the railways? Give me some benches, give me some, you know, lit up my parking area. I think like that. Now, even if Shaheen Saab can come up with some ideas, I can always allow him a kiosk here. He can set up his, you know, tourism thing. And in return, of course, he has to, you know, value add me. बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं खटक साहब की बात, I've got a lot of ideas, but I would like Shaheen to speak. ये खटक साहब की बात से मुझे बड़ा इत्तेफाक है, एंड आई थिंक इन्होंने ये कहा कि भाई देखो, यू डू बिजनेस, थोड़ा सा लाउडर, आपकी आवाज थोड़ी सी हल्की है, फ्रॉम क्लाइंट डोर टू रेलवे स्टेशन, यू टेक केयर ऑफ दिस. आप क्लाइंट को डोर से उठाओ ताकि फैसिलिटीज दो उनको, कि यू पिक द क्लाइंट फ्रॉम देयर डोर स्टेप्स एंड टेक टू. आपको थोड़ा सा और जोर से बोलना, थोड़ा सा और जोर से बोलना होगा. आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज जी. अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एक मिली है खटक साहब से, कि मैं ये इनके साथ करना चाह रहा हूँ. अगर हम शुरू करते हैं कि जी डोर से फ्रॉम द कस्टमर एंड वहां उनके घर से उठा के वी विल ड्रॉप यू, क्योंकि वी आर इन ऑल सिटी में, और मेजर सिटी, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, वी आर एवरीवेयर. तो हम इनके स्टेशन पे कहते हैं ठीक है, इनके वी विल स्टार्ट फ्रॉम द अप, बिकॉज हमारा यूरोप कार जो देखें, हम भी जो ट्रेवल एजेंसी में भी है, जो बिजनेस क्लास का क्लाइंट अभी हम फिर उसको टैकर कर रहे हैं. तो आपके भी अगर रेलवे में हम एक सर्विस स्टार्ट कर देते हैं कि जी जो वीआईपी, क्योंकि हम उनको लेके आने जा रहे हैं, काफी वो लोग हैं जो अब कहते हैं यार हम एयर ट्रेवल नहीं करेंगे, हमने लोगों को घरों में टिकट पहुंचाए हैं, बताया.
हमने टिकट पहुंचाए लोगों को, लेकिन नहीं रिस्पॉन्ड नहीं करता लोग। हम चाहते हैं कोई ऐसा कोई टाइम मुझे दें, मैं आऊं एंड विल डिस्कस इट हाउ वी कैन फैसिलिटेट द कस्टमर जो सिटी अदर सिटीज में जाने के लिए वी विल यूज रेलवे एंड उस सिटी में सर्विस देने के लिए वी आर देयर। लाहौर वी हैव फुल बेस, वी हैव डूइंग विद ऑल द बिग कंपनीज, वी आर आउट ऑफ द बॉक्स। ये तो एक सिंपल सोच है, यू कैन डू इट, व्हाई नॉट। जी शाहीन साहब बोले। तो ये एक अच्छा आइडिया है जिसमें वी आर रेडी टू वर्क ऑन इट, कि हम डोर टू डोर का हमारा कॉन्सेप्ट है कि वी विल पिक यू फ्रॉम द डोर एंड वी विल ड्रॉप यू एट योर डोर स्टेप। और बीच की कम्युनिकेशन बिल्कुल सही, इन्होंने कहा कि कॉस्ट सेविंग करने के लिए अगर हम ये रेलवे को यूज कर लेते हैं अच्छी तरीके से एंड वी प्रमोट अवर रेलवे, तो ये प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप एक अच्छी बन सकती है। वी कैन डू दैट। बिल्कुल। आई थिंक इनका गिला यही है कि पार्टनरशिप नहीं हो पा रही है एंड दे आर इंटरेस्टेड इन समथिंग लाइक दैट। इट्स गुड दैट वी नाउ नो दैट दे आर इंटरेस्टेड। और इन्होंने वेरी जेनरसली आपको कियोस्क भी ऑफर कर दिया है कि आप कियोस्क भी वहाँ लगा सकते हैं एंड आपकी कंपनी को प्रमोट कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम देन ऑब्वियसली वैल्यू एडिशन इनको भी मिलनी होगी। बिल्कुल 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 शेयरिंग, बिल्कुल 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 बुकिंग पे शेयरिंग, बिल्कुल रेलवे भी दे विल आल्सो अर्न, वी विल। देखिए विन विन पोजीशन, आजकल टाइम है विन विन पोजीशन का। बिल्कुल बिल्कुल। और पार्टनरशिप्स ही होती है, पार्टनरशिप्स के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। मगर अरशद साहब, मेरा सवाल आपको ये है कि आजकल ना एक ट्रेंड ये भी चला है कि वो जो बोगीज बनाते हैं या जो सैलून्स होते हैं जो बहुत हाई एंड होते हैं, द इंटायर फैमिली वो उसको बुक कर लेती है एंड ये इंडिया में भी ये बहुत अब चल रहा है, इंग्लैंड में भी है एंड दे आर दे स्टेट ऑफ द आर्ट, दे आर लग्जरी। बिल्कुल उनका जो वो पूरा बोगी होता है वो उसकी मैंने अभी बीच में हम लोगों ने हमारी कमेटी में तस्वीरें शेयर हुई थी, आई विश आई कुड शेयर दोज विद यू। तो उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट, जैसे आपने बताया कि हमारे पास स्टेशंस बहुत अच्छे हैं, हिस्टोरिकल हैं, वहां से हमारा एक वो जो टूरिज्म का एक पहलू जो है वो वहीं से शुरू हो जाता है द मिनट यू अराइव एट द स्टेशन, बट यू कैन ऑल्सो हैव दैट विद इन योर द ट्रेन कंपार्टमेंट इटसेल्फ। I had traveled by train about, I think, maybe 15 years ago or something with a whole lot of my old university friends के साथ हमने सबको एक tour किया था. We went through Cairns station. I was pleasantly surprised to see it was neat and clean, even at that time, so many years ago. और वहाँ पे, in fact, I think smoking was not allowed at that station. शायद board मुझे याद है मैंने पढ़े थे कि स्मोकिंग इज नॉट परमिटेड, और आई थिंक बिक भी नहीं रहा था वहाँ पे, जो कैंटीन्स वगैरह जो थे वहाँ पे दे वर नॉट सेलिंग थिंग्स लाइक पान एंड सिगरेट्स एंड ऑल। These are great steps to take. I am very happy that they are doing this. लेकिन जी आपको as late as जी last week मेरे डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर ने I don't know destroyed maybe 5-6 लाख रुपया के सिगरेट्स एंड दीज थिंग्स। तो बहुत सी चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन सिंस ऐसे हालात हैं कि हम मार्केटिंग नहीं करते उसकी, बिकॉज वी फील कि हमें जरूरत नहीं है। हमारी अपनी इनर्शिया इतनी है कि हम कहते हैं हम इस इनर्शिया से हम मूव करेंगे। तो उस वजह से लास्ट ईयर मैंने कुछ प्लांट्स लगाए यहाँ बिटवीन माय प्लेटफॉर्म्स और अस्करी 10, ह्यूज एरिया, 6 एकड़। आई थिंक दैट्स द ग्रीनेस्ट स्पॉट। मैं आज सुबह गया था, दैट्स द ग्रीनेस्ट स्पॉट इन कराची। ठीक है, 6 एकर्स में विथ माई ओन पीपल, नॉट आस्किंग एनीबॉडी। अच्छा, उसके बाद एक कैंपेन चला था, सम लेडीज फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी, तो उन्होंने कहा जी हम दरख्त लगाएंगे। तो मैंने कहा कितने एकड़ पे लगाएंगे? कहते हैं जी हम तो 10 दरख्त लगाने आ रहे हैं। तो देयर वाज दिस मीडिया थिंग हैपनिंग। तो मैंने कहा हमने तो 6 एकड़ पे लगा के वी डिडंट टेल एनीबॉडी कि हमने दरख्त लगाए। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग जी। सिगरेट आपको नहीं मिलेगा अभी भी, आप जाएं इवन नाउ इफ यू जस्ट गो बाय सरप्राइज, तो कोविड के जो SOPs हैं वो फॉलो हो रहे हैं।
और पर्सन लाइक जो आता है ARY में, उसने रेट शेट किया एंड ही वाज द वन जिसने कहा कि जी मैं तो हैरान हो गया हूँ कि आप लोग कैसे कर रहे हैं। अगेन कमरान साहब जो हैं, वन ऑफ द चैनल एंकर पर्सन, ही केम और उन्होंने कहा जी ये तो दिस इज अमेजिंग एंड स्टिल हैपनिंग। हालांकि कोविड शोविड का ड्रामा काफी कम हो गया है, बट स्टिल वी आर डूइंग इट। आई हैव माई दिस थिंग, वो तो मैंने आपके शो के लिए उतार दिया हुआ है। तो आपको रेलवे में इंतहाई अच्छा माहौल मिलेगा। आपको क्या होना है, आपको हुकूमत की बैकिंग मिलेगी। पर्सन इन व्हाइट यूनिफॉर्म, यू विल नेवर सी हिम डिसरिस्पेक्टिंग लेडीज। वो लोगों की हेल्प करेंगे, आपको व्हील चेयर्स मिलेंगे। ये जो हम कहते हैं ना कि दुनिया में हो रहा है। नाउ बिफोर दैट आपने सैलून्स की बात की, हम सैलून्स देते हैं और लोग हमसे लेके जाते हैं। वी हैव गॉट अ मैरिज सैलून आल्सो, so newlywed people, instead of spending their money in Avari or किसी होटल में, so they can enjoy by traveling. It's pretty nice. अगर आपको थोड़ा सा रोमांटिसिज्म से शौक हो, with the old time things, पंखे, 2 परों वाले पंखे लगे हुए हैं, brass वाले things, your flush is Shanks पुराना, a shower, small shower from that time. So all these things are very romantic, and you have your own kitchen. So person like Shaheen Saab can always entice his people कि यार आप पहाड़ों पे तो जा रहे हो, लेकिन you can travel by saloon also, and it's not like up to Pindi would be like 1,25,000 रुपए for 8 people, which is nothing. 1,25,000 रुपए में 8 लोग जा रहे हैं, and you are served by my people. You bring your own food, you can cook there, you can bring your servants along, ठीक है। वहां पे टब लगे हुए हैं, वहां पे शावर्स हैं, वहां पे ड्राइंग रूम है, वहां LED टेलीविजन लगा हुआ है। सो इट इज देयर प्रोवाइडेड somebody comes और बोले जी हमने बुक करना है। Now, मेरे पास with my kind of thing I'm doing, मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं कि I go to people और मैं एडवर्टाइज करूं। अर्शद साहब, आपको मैं ऑफर कर रही हूँ, आप ये अपनी तस्वीरें, ये सारी चीजों की ये मेरे लिए भी न्यूज है। आई डिड नॉट नो अबाउट दिस। आप हमारे साथ शेयर करें, वी विल एडवर्टाइज फॉर यू। जी बिल्कुल करें, लेकिन मैं तो ये बता रहा हूँ कि आई कैन इवन नाउ विदाउट आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम शाहीन साहब, आई कैन टेल हिम कि जनाब मेरा जो अपना सैलून है, ही कैन टेक फोटोग्राफ्स ऑफ दैट। मैं आई वुड अलाउ दैट टू बी कमर्शियली हैंडेड ओवर, एंड ये इनकी बुकिंग करा लें फॉर हिज नेक्स्ट ट्रिप। तो एक हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। ये फिर उसकी फोटो खींचेंगे, विद वुडन पैनलिंग, पुराना 100 साल पैनलिंग हुई है उसमें, और यू आर सिटिंग ऑन वाइट क्रिस्प स्टार शीट्स, और आपका बेड इतना सॉफ्ट होता है कि बंदा कहता है कि मैं इसमें सोया रहा हूँ। तो एंड देन यू आर ट्रैवलिंग, यू आर हैविंग योर ओन फ्रूट, अखबार पढ़ रहे हैं, वॉचिंग टेलीविजन और प्लेइंग विथ योर थिंग्स। तो आप ट्रेवल करें ना जी, वाईफाई उसमें होता है। मैं कह रहा हूँ ट्रेवल दिस इज फॉर हिम कि ये आए मुझे बोले कि जी मैंने आपके शॉर्ट्स निकालने, फिर मैंने, एंड देन व्हेन ही बुक समबडी, तो मेरा क्या जा रहा है, आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी पार्ट ऑफ हिज अर्निंग। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी गाड़ी प्रमोट हो। सही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं क्लाइंट को कहूंगा जी आप ये बुक करते हैं तो यूरोप कार आपको प्राडो में पिक करेगा आपके घर से और ट्रेन पे छोड़ेगा, और जिधर आप उतरोगे उधर से आई विल डू दैट, आई एम रेडी टू डू दैट। हाँ देखिए बहुत कुछ हो सकता है, अब तो ऑनलाइन है हमारा सब कुछ, इवन रेलवेज के बुकिंग ऑनलाइन हो रही है, तो वो इश्यूज नहीं है। सैलून्स वगैरह का ऑफ कोर्स आपने पूछना होगा हम लोगों से, हम अवेलेबिलिटी देखेंगे, बिकॉज देयर वेरी फ्यू इन नंबर जो हम कमर्शियल यूज में डाल रहे हैं। आपके पास कितने सैलून्स हैं? ओवर द सिस्टम देयर आर अबाउट 12 जो हम इन कामों के लिए करते हैं। बट if somebody from the private sector और बोले कि जी हमने 12 सैलून्स बुक करने, ठीक है, जिसमें there is a possibility we can ask the governor कि उनका सैलून और the prime minister और my minister कि अब अपने सैलून्स भी दे दें, and we can have one train and we charge them for the operations. Yes, so yes, we can. एक तो इनका वाह वाह हो जाएगी, and this is not nothing new. इससे पहले सराय ट्रेवल्स वाले थे पेशावर में, देरवन दुरानी साहब, वो खैबर स्टील सफारी चलाते थे, और इट वाज सो फेमस 10 years बैक
कि सारी दुनिया से लोग आके पेशावर में लैंड करते थे, नॉट कमिंग टू पेशावर, दे वुड से हम जा रहे हैं, लाइक अ गाय सिटिंग इन इंग्लैंड, हेलीफैक्स में बंदा बैठा हुआ है, तो वो ही वॉज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, ही वॉज कमिंग टू स्टीम सफारी, खैबर स्टीम सफारी। आप बात समझ रहे हैं? द आइडिया इज नॉट पाकिस्तान, द आइडिया इज खैबर स्टीम सफारी, ठीक है? तो उनको उस सफारी में ले जाना, आई डोंट नो वेयर बीन ऑन इट, वो दैट वाज समथिंग। अब ये वॉर के दौरान जो मुल्क में टेररिज्म हुआ है, उससे वो जगह खराब हो गई। बट इवन सिंध में, यू नो, यू कैन अरेंज पीपल टू गो टू शाहबाज कलंदर, व्हाई नॉट? ठीक है जी। आप आगे, आपके यहाँ पे ये झील है बड़ी मशहूर, दुनिया की सबसे बड़ी झील है। लास्ट ईयर मैंने यहाँ एक लोकल गाड़ी चलाई थी, तो लोग संडे में इट वाज फेचिंग मोर मनी। मैंने पूछा क्यों, तो पता चला कि पीपल यूज्ड टू ट्रेवल टू दैट झील, तो वहां पे उतर के स्टेशन बियॉन्ड पोर्ट कासिम एंड यूज्ड टू ट्रेवल देयर, और शाम को गाड़ी वापस आती थी। तो इट वाज लोकल ट्रेन, माय सर्विस। लेकिन कराची सिटी ने उसको प्रमोट नहीं किया उस ट्रेन को, नोबडी वाज ट्रेवलिंग इट। यू नो, हम अजीब से लोग हैं, सॉरी टू से, लेकिन बहुत से काम नहीं हो सकते यहाँ पे। आप सिर्फ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन अ डेजर्ट? हाँ, आप थोड़ा सा 7 से आगे जाएंगे, यार 7 का इलाका है, दिस ऑल डेजर्ट। अरेंज अ लैंड क्रूजर सफारी फॉर देम, मैं 7 में उनको उतारूंगा, आप उसमें बिठाएं, उनको सेंड ड्यून्स पे ले जाएं। दुबई जाने की क्या जरूरत है आपको? आप उस पे सैंड स्कीइंग करा सकते हैं। यस, हर चीज यहाँ हो सकती है। यू नो, देयर गाइस पाकिस्तान में हैं जो बोर्डिंग करते हैं, ठीक है ना, उसके पहिए नहीं होते, सो पुट इट ऑन द सैंड, और उस पे वो सैंड पे हो जा सकते हैं। आप ग्लाइडिंग कर सकते हैं इसी इलाके में। सही कह रहे हैं, यस यू आर राइट, ठीक है ना। लेकिन हम क्या नहीं, हम ये नहीं करेंगे। हम वो करेंगे कि हमने होटल वालों से बात की होगी, होटल की ऑक्यूपेंसी कम है, हमने वहां लोगों को फिट करना है। ओके शाहीन भाई, आई थिंक वी कैन टॉक लाइक दैट, है ना, जस्ट टू डिस्कशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कॉस्ट बचाने के लिए नाइट में ट्रेवल करता था ट्रेन पे कि कॉस्ट बचती थी मेरी। एक तो ये इतना कॉस्ट सेविंग है कि आपको होटल में रुकने की जरूरत नहीं। देखिए बहुत सी चीजें होंगी ना, मैं कह रहा हूं जब आप आएंगे ना, इंप्रूवमेंट्स आएंगी, व्हेन देयर इज नो प्रेशर ऑन मी, ठीक है। अब देयर वाज नो प्रेशर ऑन मी फ्रॉम मेरे जो मेहमान आए हुए हैं कि जी टॉक टू अस, तो मैं तो नहीं बोल रहा था, आई वाजंट टॉक टू यू, बट व्हेन देयर वाज दिस प्रेशर फ्रॉम हिम कि जी नहीं आपको हमने लाइन पे लेना है, आई वांट टू टॉक टू यू, टॉक टू मी ट्वाइस, मैंने कहा जी मेरे मिनिस्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, यू नो, थिंग्स लाइक दैट, बट आई फाउंड आउट टाइम एंड नाउ वी आर टॉकिंग, और हम बात कर रहे हैं इंप्रूवमेंट की। सो द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम टू मी एंड वी स्टार्ट टॉकिंग, of course I'll bring an incremental change in my operations. yes. मेरी सफाई बेहतर हो जाएगी, मेरे जो बंदे हैं they'll be much smarter, आपको अच्छे लोग सामने नजर आएंगे, मेरा जो फेस होगा रेलवे का it will be much younger, much energetic, ये चीजें चेंज होंगी। बट आपकी डिमांड ही नहीं है, you are be happy with a white beard बूढ़ा आदमी, you know, जो ऐसे बैठा हुआ है बेचारा, हिल भी नहीं सकता, so I am providing you that guy। सही कह रहे हैं। But you said नहीं फटे साहब मुझे आदमी नहीं चाहिए। नहीं अर्शद साहब, मैंने तय कर लिया कि ये 12 सैलून्स मैं आपसे एक दिन जरूर बुक कराने वाली हूँ। करें देखिए, हमें तो बड़ी खुशी होती है। लाइक आई सेड, मैंने सेटअप किया है म्यूजियम यहाँ अपने घर में। नो, इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट इज लिव इन रेलवे हेरिटेज म्यूजियम। आई एम लिविंग देयर, आई हैव डेडिकेटेड अ पोर्शन ऑफ द हाउस एज अ म्यूजियम। अब मैंने फॉर्मली ओपन नहीं किया, बट पीपल लाइक यू कैन ऑलवेज कम, और जब आपके गेस्ट आएंगे नेक्स्ट टाइम कराची में, तो मेक इट अ पॉइंट कि उनको मेरे घर पे ले आए जरूर। वो तो इसी तरह डेडिकेटेड टाइम, मैंने टाइमिंग्स रखी हुई हैं। द कमिश्नर टोल्ड मी कि यार जल्दी करो, मैंने कहा नहीं सब्र करो, जब तक कोविड नहीं खत्म होगा, मैं इसका वो मजा नहीं खराब करना चाहता। सो सही है, माई सेल्फ, यू नो, एंड बाय इन्वेस्टिंग जीरो रुपीज, मेरे अपने आर्टिफैक्ट्स थे इधर उधर स्क्रैप में पड़े हुए थे, मैंने उठाया, एक बंदा मैंने हायर किया, उसकी बफिंग कर रहा है। आई हैड माय हाउस व्हिच इज अ हेरिटेज साइट, यू नो, जैसे कैंट का स्टेशन है ना, उसका वही आर्किटेक्चर है। आप कहाँ रह रहे हैं? ब्यूटीफुल लॉन्स। मैं शाम को आपको वहां पे, यू नो, जस्ट अ कपल को बैठाऊंगा, मेरा प्लान है, एंड आई एम गोइंग टू चार्ज देम 1000 रुपीज पर टी कप।
Oh, very good. Why not? People love to give it. Yes. And yes, why not? Yes. है जी? Well, बुकिंग पे लोग आएंगे. मेरा ये प्लान है कि there be just one small tea table with 2 cups served by a guy wearing a turban. हाँ, और अपने लॉन में बिठाऊंगा. And I'm going to charge them 1,000 rupees a cup. जो दे सकते हैं आ जाए, वरना okay. And that money goes to the museum. sounds excellent. Museum will be like बिल्कुल. 10-20 It's rupees very good. per very entry. good. ये हम कर सकते हैं. So what I'm telling you बिल्कुल. कि जब तक हमारी इंटरेक्शन नहीं होगी, हमारे पास कोई आएगा नहीं, या हम किसी के पास जाएंगे नहीं. मैं नहीं जा सकता. I'm a government. मैं नहीं जा सकता. लोग मेरे पास आएंगे. नहीं, we will. तो then we start talking. बिल्कुल. We start talking. Ideas crop up. Okay. There's a museum in Gorla. How many of you have seen that? I It's have. a heritage museum, Gorla, Islamabad. आपको पता है I've been दुनिया to से it. लोग आते हैं. यूनेस्को साइट है. That was built by one of my senior cousins. वहीं पर He steam got a engine भी Kamma है ना? Imtiaz for that. No, वो म्यूजियम जो है उसके लिए लोग आते हैं. ये जो छोटे एयरलाइंस है ना, हॉप उसको कहते हैं, हॉप. वो 200-300 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, फिर किसी छोटे एयरपोर्ट पे उतरते हैं. So you know, every year they make an anniversary, और इनका एक हॉप इस्लामाबाद होता है, just to see Railway Heritage Museum. जी. And it's beautiful. It's very beautiful. And it is there, and very few people in Islamabad have been there. और free है. They are not charging anything. हमारे इश्यूज हैं जी. हम चाहते हैं कि फ्री कुछ नहीं देंगे, और जो भी करना है, we want to extract money out of that. सही कह रहे हैं. No, government is not into this business. अब हम थोड़े चेंज हो रहे हैं, लेकिन we can't be extracting money. मेरे 80% operations जो हैं, these are PSO, Public Service Obligation to the people of Pakistan. जबरदस्त. अच्छा, ये बताएं कि आपका जो ट्रेन है वो कराची से लेकर कहाँ तक, पेशावर तक है या बियॉन्ड? कराची से पेशावर, कराची से क्वेटा, चमन. 0 पॉइंट, आपका 0 पॉइंट है इंडिया के पास. ठीक है, हमारा स्टेशन है वहां पे. हाँ जी. आपका हवेलियां है जहां हमें अल्टीमेटली चीन के साथ मिलना है. मैं आपको बता रहा हूँ ना, इफ यू जस्ट गो टू अटक, आपने क्या देखना है अटक में? अटक फोर्ट का स्टेशन हेरिटेज, इंडस 6th लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ब्रिज, अटक ब्रिज, जबरदस्त मैजेस्टिक. Ghazi Barota, the only kind of hydropower station in the world, the only. अच्छा, फिर another 20 kilometers Tarbela Dam, the world largest earth-filled dam. ठीक है, वहां पे वाटर स्कूटर्स, वहां पे स्कूबा डाइविंग. आपको पता है? आपका दीना का स्टेशन ले लें. दीना के स्टेशन के पास आपका शेरशाह सूरी का एक बहुत मशहूर फोर्ट है, और उतनी डिस्टेंस पे आपका जनाब जेलम पे आपका मंगला डैम है. और मंगला डैम में आप जाएं, जो आर्मी वालों ने वहां पे जो वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी डेवलप की है, तो वो तो आपको मैं तो पूरी दुनिया फिर रहा हूँ, वो तो यूरोप में भी नहीं है. एंड फॉर नथिंग, यू नो, जब हम खैबर सफारी चलाते थे तो हमने फ्रंटियर कोर को कहा था मेस में खाना देते थे, यू नो, और वो मेस हमें चार्ज करती थी. वहां पे हटक डांस होता था और लोग पागल हो जाते थे. तो अगर रेल से जाके दीना पे आप वेट करें और मंगला जाएं और आर्मी वाले गैरिजन वालों को बोलें कि जी आपका हम वाटर स्कूटर इस्तेमाल करेंगे, तो आपके मेंटेनेंस के पैसे निकल आएंगे उससे. हु इज स्टॉपिंग यू? और वहां पे अपने प्राडो, शाडो, अपने कोस्टर्स, वो भी एक लिंक दे दें. सारे सही कह रहे. ठीक है, अब जाए ना. नारोवाल में आपका सिख टूरिज्म है. हमने हसनअब्दाल में बेहतरीन किस्म का स्टेशन बनाया है. आप सिख टूरिज्म को प्रमोट करें वहां पे. उसमें हमने गेस्ट रूम्स बनाए हुए हैं सिखों के लिए. पंजा साहब में अगेन ब्रांड न्यू स्टेशन हमने बनाया हुआ है फॉर सिख टूरिज्म. करतारपुर क्या चीज है? सेम थिंग, टूरिज्म है ना. बिल्कुल. अच्छा, मैं आई कैन स्पीक, यू नो, वी कैन. क्वेटा इटसेल्फ, क्वेटा जाना, उसकी जो जिसको थोड़ा सा भी इंजीनियरिंग, जिसको थोड़ा सा भी हिस्ट्री, बिकॉज यू नो व्हाट इज टूरिज्म. टूरिज्म इज हिस्ट्री. आपको हिस्ट्री से ताल्लुक है तो आप तो एक टनल पे जब, यू नो, व्हेन यू आर क्रॉसिंग द टनल, आप पूरी किताब पढ़ेंगे, फुल बुक ऑन वन टनल रिटन बाय दैट जेंटलमैन. हाँ, विंडी साइड, एक आदमी है विंडी साइड.
किसी ने अपने महबूबा के नाम पे टनल का नाम रखा, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया। आपके 5 रुपए नोट के पीछे जो टनल है, हैव यू बीन देयर? नो। वो कौन सा है? ये सब है, दिस इज ऑल रेल टूरिज्म। और हम करते थे, देखना होगा। मैंने कहा अब आज मुझे जाके देखना होगा उस 5 रुपए के नोट को। ऑफ कोर्स। हाँ हाँ, देखिए ना, आपने 5 रुपए नोट पे देखा भी नहीं है क्या चीज। 5 का नोट तो मैडम, मैं ये व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि प्राइवेट सेक्टर को और भी शाहीन साहब की तरह लोगों को ढूंढे। इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग, we'll have a meeting here in my office. I can do it, right? हमारे साथ कोई कनेक्शन बनाए, हम आपको डेडिकेटेड पार्किंग देंगे, डेडिकेटेड पार्किंग इन द मिडल ऑफ द सिटी। कौन ऑफर कर सकते हैं आपको? Nobody. We are ready. Any major city में जाएं, रेलवे will offer you dedicated parking. सही। आपका जो होगा ना कोस्टर, उसके लिए जगह मखसूस होगी कि यहाँ पे जनाब शाहीन साहब, शाहीन इंटरनेशनल ट्रेवल्स, यूरोप कार। We can do that. We can do that. देखें, हम तो बात समझ रहे हैं। बात बताऊं, वहाँ पे पुलिस होगी रेलवे की, and when they know कि ये इसमें हमारे ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं इस प्रोजेक्ट में, वो तो जान देते हैं। They're so good about these things. Otherwise तो आपको हर जगह मुल्क में लेतार्जी है, कोई काम नहीं कर रहा। आपको गार्बेज नजर आएगा रेलवे से, जब आप कराची से निकलेंगे 26 किलोमीटर में गार्बेज पड़ा हुआ है, मेरा नहीं है, ऑफ द प्रोविंशियल एंड द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट टू कलेक्ट देयर गार्बेज। आपको पता चलेगा कि हुकूमतें काम कैसे करती हैं। आप जब पिंडी में एंटर होंगे तो आपको दोनों साइडों पे नजर आएगा कि ग्रीन बेल्ट्स बने हुए हैं, फ्रॉम चकलाला टू पिंडी। व्हाई? बिकॉज वन रेलवे गाइड डिसाइडेड कि जो सारे घर वाले जो है ना, ये अपने लॉन्स एक्सटेंड कर रहे हैं, हम आपको कुछ नहीं कहते। इट्स ऑल ग्रीन। G13 जो है F13 और G13, it's all green on either side of the track. Why? Because one guy decided कि ये जो लोग हैं ये अपने लॉन्स बना रहे हैं, हम कुछ नहीं कहते। तो आपको ये मिलेगा। फिर आप रवि ब्रिज पे जाएंगे, कौन सा, मैं आपको कितनी हिस्ट्री बताऊं। नहीं, आई एम सोल्ड। आप जो बुक्स बने हुए हैं रेलवे पे, आप अपना स्टीम इंजन को रिवाइव करें, आप अपना सर्कुलर रेलवे को भी रिवाइव करें, स्टीम इंजन को भी रिवाइव करें। आपको पता है कि सर्कुलर रेलवे पे मैंने 11 किलोमीटर ट्रैक बना दिया है। अभी आप जाएं फ्रॉम वजीर मेंशन साइट और अप टू साइट, अभी भी काम हो रहा है। मैं रिवाइव कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग ऑन दैट। यू स्टार्टेड रिवाइविंग दैट, लेकिन मैं नहीं बोलता सियासी बातें हैं, नोबडी इज इंटरेस्टेड। वो उसकी इनॉग्रेशन हुई थी कुछ सालों पहले, व्हेन इसको रिवाइव किया जा रहा था। मैं उस टीम में थी ऑफ द पीपल हु टुक दैट हिस्टोरिकल ट्रेन राइड ऑन द सर्कुलर रेलवे के आज रिवाइव हो रहा है उसका। उस जमाने में आई थिंक फारूक लिगारी वाज देयर। हुआ था 2-3 दफा बाद में हुआ। लास्ट टाइम जब मैंने दाबी जी एक्सप्रेस स्टार्ट की थी, तो ये है, इट्स नॉट अबाउट केयरिंग पीपल। आपने लोगों को इन्वॉल्व करना है, आपने लोगों को इन्वॉल्व करना है। आपको इतने पब्लिकेशंस मिलेंगे मेरे पास। आई हैव गॉट अ वाइड वैरायटी ऑफ बुक्स। ये मैं लेट मी शो यू, ये पीछे आपको बुक्स नजर आ रहे हैं, इसमें से एक किताब मैं आपको पकड़ाऊंगा ना तो आप रेलवे के आशिक हो जाएंगे सब। जस्ट वन बुक, ये सारी नहीं, एक किताब। हम सिर्फ हमारे जब आप स्टैंडर्ड्स देखेंगे ना तो आप आईएसओ को भूल जाएंगे। खटक साहब के तो पास टाइम लेके ये चीजें आप लोगों को फीड करें। बिसाइड्स ट्रेवलिंग एंड ईटिंग कढ़ाई गोश्त, हमने उनकी किताबें पकड़ानी है रेलवे पे। कपलिंग टू खैबर, यू कैन सेल दैट बुक जी, उनकी आप रीप्रिंट्स करें। दैट्स द साइड बिजनेस। बिल्कुल। आफ्टर दिस वेबिनार बना सकते हैं। शाहीन और मैं आपके पास आने वाले हैं। आफ्टर दिस वेबिनार द टू ऑफ अस विल टेक टाइम विद यू एंड वी विल कम टू यू with the proposal. We are always happy to be of any service जब तक हम हैं, whenever we are around। आपको हर एक बंदा हेल्प करेगा, not only me but people following me। ये तो no issues, no issues। Another step, we will do the things। Ahead to fun शुरू हो चुका है। While we are on, we can immediately start pick and drops। तो हाई एंड में कर सकते हैं हम।
तो हमें जरूरत ही नहीं है यहाँ से अपनी गाड़ी लाहौर भेजने की। वी विल यूज यू, एंड लाहौर में हमारे पास अपना और स्टेशन है, वहां से फिर गाड़ी लेके लोकल टूरिज्म कराया, फिर हमने आपके रेलवे पे छोड़ा। ये वी विल डू दैट। ये आपका मुझे बिल्कुल इसके ऊपर आई विल वर्क ऑन इट। No, in fact, आज Commodore साहब नहीं आए, Daewoo वाले. He's from Daewoo, and I would have liked him to be there also, because Arshad साहब ने जो आज बातें की हैं, I think this is all a question of doing these partnerships. The public and private sector का partnership is important. और जितने हम इस तरह के partnerships कायम कर सकते हैं, I think उतना बेहतर है for Pakistan. Let's take it forward. I think we should definitely. बाहर तूफान है। मैं बता रहा हूँ ना कि somebody has to come up with a proposal. मेरे पास जो आता है ना, मुझे कहते जी I want, because मेरे पास I'm the richest guy, मेरे पास लैंड है बहुत ज्यादा, सबकी नजर है, इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं, ये हो रहा है, हम हटा रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े, all the big names involved हैं उसमें। तो लेकिन हर एक बंदा आता है, उसको जमीन चाहिए। No, you can't have any business, without land. I have that. मैं इस वक्त I'm the dead city center में मैं बैठा हूँ। मेरे पास कितनी जमीन है यहाँ पे in front of Habib M Plaza? 3,000 acres of land. 3,000 acres of land. That can be put to use. बिल्कुल। अगर सिर्फ शहर वाले आए चंडीगढ़ रोड से ट्रैफिक की पार्किंग खत्म करना चाहे ना, लेकिन कम टू मी, मैं उनकी सारी पार्किंग एक अपने प्लॉट में डाल दूंगा। आई अर्न मनी। ये जगह का एकदम फैशन शो हुआ था बहुत और 10 जगह और बता रहा हूँ आपको। योर एंटायर जो है ना सड़कें, ये पार्किंग से खत्म हो जाए। बट यार नहीं चाहते लोग, चाहते नहीं है। पीपल डोंट वांट, लोगों को हला गुला गड़बड़ में, हमारा में मजा आ रहा है, बिकॉज देन दे कैन डू लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स। ये चंडीगढ़ रोड पे आपको एक गाड़ी नजर नहीं आएगी। लेट सम प्राइवेट गाय कम टू मी और मुझे बोले जी मैंने यहाँ पे पार्किंग स्टार्ट करनी है, आई एडवर्टाइज, ये कर ले। नहीं आते बिकॉज कियोस्क में मजा है, कियोस्क में मजा है। वहां पे बहुत से लोगों की इंटरेस्ट है। कियोस्क अगर नजर नहीं आएगा, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक। सो ये इश्यूज हैं। No, I think we've had a very productive session today. Thank you, and I'm sure Shaheen is also going to take this up. और अच्छा जी, I think काफी डिस्कशन हो गई जी। और बाहर हालात काफी खराब हो रहे हैं, बहुत तूफान शुरू हो चुका है। So I think हाँ, बहुत तेज बारिश हो रही है। So I think we should end it ताकि everybody can go home. So thank you Arshad Saab, thank you Shaheen, thank you Bakar Saab if he's still there for facilitating this and for being there. Arshad Saab मेरा thank you Bakar Saab को भी communicate कर दें, and thank you everybody for joining us. We'll see you next time again soon inshallah. Thank you.